Good morning, dear student. Become semester 5 English medium, R. Mehta College of Science and C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur. Dear student, this is our last example in this chapter, unit number 3 and 4. Dear students, this is our last example, and then after we complete our unit number 3. And I request to all students, please you calculate you will calculate example at home more and more, so you make perfect. And in accountancy, practice make a perfect, so you do practice at home. Now dear students, today I will choose example number 20, Anu Limited and Binu Limited. Okay, so I read the information related to our example. So Anu Limited and Binu Limited were amalgamated on 1st April 2012. A new company, Meet Limited, was formed to take over the business of both the companies. The balance sheet of Anu Limited and Binu Limited as on 31st March 2012 are given as under. तो यहाँ पे क्या है, अनु और बिनु मर्ज होके न्यू कंपनी स्टार्ट करते हैं मित, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ए जो अनु है वो बिनु को परचेज कर रहा है और फिर उसके बाद मीत कंपनी जो है ए और बी मर्ज होके मीत कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे. On liability sides, Anu Limited and Binu Limited. Equity share rupees 10 each, 6 lakh 40,000, 6 lakhs. 12% of preference shares of rupees 100 each, 2 lakh 40,000, 1 lakh 60,000. Revaluation reserve 1 lakh 20,000, 80,000. General reserve 1 lakh 36,000, 1 lakh 20,000. Investment allowance reserve 40,000, 40,000. Profit and loss account 40,000, 24,000. 10% debenture 48,000, 24,000. Creditors 3 lakh 36,000, 1 lakh 52,000. Total 16 lakh 12 lakhs. Assets, so fixed assets 7 lakh 20,000, 5 lakh 20,000. Investment 1 lakh 20,000, 40,000. Stock 2 lakh 80,000, 2 lakhs. Debtors 2 lakhs, 2 lakh 40,000. Bills receivable 40,000, 40,000. Bank balance 2 lakh 40,000, 1 lakh 60,000. Total 16 lakh and 12,000. Now other information. 10% debenture of Anu Limited and Binu Limited are discharged by Meet Limited, issuing such number of its 15% debenture of rupees 100 each, so as the maintain the same amount of interest. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो हमारे जो पुराने शेयर थे 10% के, उसकी जगह हमें 15% के न्यू डिबेंचर्स देने हैं. लेकिन कैसे देने हैं, ताकि जो पुराने शेयर होल्डर्स थे अनु और बीनू के, उनको इंटरेस्ट का लॉस ना हो. Second, preference holders of both the companies are issue equivalent number of 40% preference shares of Meet Limited at a price of 140 per share, face value 100 रुपीज. अब हमें क्या करना है दूसरा, कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनके, ओके, तो हमें सेम टू सेम इक्विवेलेंट नंबर पे देना है. यानी कि जो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 2,47,100 यानी कि 2,400, एंड 1,67,100 यानी कि 1,600. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नो चेंज, only change our offer price. Before we offer 100 rupees, but after the amalgamations we offer 140 rupees, यानी कि 40 rupees है premium. Number 3, Meet Limited will issue one equity share for each 2 equity share of Anu Limited and 2 equity share for each 5 equity share of Binu Limited. The shares are to be issued at 30 each, having a face value of rupees 10 per share. Means, okay friends, we offer 2 equity shares against, sorry, we offer one equity share against 2 equity share of Anu Limited, and we offer 2 equity share against 5 equity share of Binu Limited, and we offer the shares with premium 20 rupees because face value is 10 and offer price 30. So 30 minus 10 is equal to 20 rupees. Number 4, investment allowance reserve is to be maintained for 3 more years. So friends, you continue the uh, allowance reserves in your new company.
Now prepare the balance sheet of Meet Limited as on 1st April 2012 after the amalgamations has been carried out on following basis. Number 1, amalgamations is in nature of purchase and 2, amalgamation is in nature of merger. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें टू टाइप्स की कैलकुलेशन करनी है, व्हेन द नेचर्स ऑफ परचेज एंड व्हेन द अमलगेशन इज नेचर ऑफ मर्जर. नाउ वी स्टार्ट अवर कैलकुलेशन. So first friends, we find out number of equity shares because we offer 1 against 2 and 2 against 5. ओके, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपने जो है वो थोड़ी सी नेसेसरी कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले न्यू इक्विटी शेयर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम जो अनु लिमिटेड है उसको हम उसके जो 2 शेयर है उसके सामने हम उसको 1 शेयर ऑफर कर रहे हैं. तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, तो 6,40,000 अपॉन 10 यानी कि 64,000 के सामने हम कितने शेयर देंगे, तो 32,000 इक्विटी शेयर देंगे. उसके बाद उसी तरह बिनू लिमिटेड, तो बिनू के हम 5 शेयर के सामने 2 शेयर्स हम उसको ऑफर कर रहे हैं. तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो 6 लाख अपॉन 10 यानी कि 60,000. तो उसके न्यू शेयर होंगे 24,000. नाउ वी स्टार्ट अवर परचेज प्राइस कैलकुलेशन. We find out our new share capital. So friends, first you make the table details Anu Limited and Binu Limited. So friends, equity share capital, तो A 32,000 multiplied 10 यानी कि 3,20,000 and B 24,000 multiplied 10 यानी कि 2,40,000. प्रीमियम तो 30,000 multiplied 20 यानी कि 6,40,000 and B 24,000 multiplied 20 यानी कि 4,80,000. मीन्स फ्रेंड्स नंबर ऑफ टोटल्स जो हमारा है वो सॉरी हमारा टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया 9,60,000 एंड 7,20,000 प्लस वी ऑल्सो ऑफर प्रेफरेंस शेयर्स. तो वी ऑल्सो मेक अ कैलकुलेशन. तो इक्विवेलेंट you can see here equivalent means same to same, there is a no change. तो प्रेफरेंस कैपिटल तो 24,000 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती है 2,400 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2,40,000 एंड बी 1,600 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1,60,000. नाउ प्रीमियम तो 2,400 मल्टीप्लाई 40 96,000 एंड बी 1,600 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 64,000. नाउ टोटल जो हमारा हो गया टोटल इक्विटी और प्रेफरेंस तो 12,96,000 एंड 9,44,000. इक्विटी प्लस ये दोनों का टोटल करके हमारा हो गया टोटल न्यू इक्विटी शेयर्स मीन्स की न्यू शेयर कैपिटल 12,96,000 अनु लिमिटेड एंड 9,44,000 बीनू लिमिटेड. नाउ लेट्स ओल्ड, अब उसमें से हम पुरानी उसकी जो थी वो शेयर्स कैपिटल हम उसको यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं न्यू में से. तो उसकी पुरानी देख लेते हैं. तो इक्विटी शेयर 6,40,000 एंड 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2,40,000 एंड 1,60,000. तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो होगा 4,16,000 एंड 1,84,000. यानी कि हमारा जो जनरल रिजर्व हम इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व. तो इसका टोटल हो गया हमारा 6 लाख. ओके, तो टोटल कितना हो गया 6 लाख हमारा हो गया जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अब उसके बाद हम बात करते हैं डिबेंचर्स की. तो डिबेंचर्स पे चलते हैं. तो सबसे पहले हम ओल्ड डिबेंचर की बात करते हैं. तो ओल्ड डिबेंचर हमारे कितने हैं 48,000 अनु में और बिनु में 24,000 यानी कि टोटल 72,000. अब उस पर 10% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 44,800 एंड 2,400. अब 10% की जगह अब हमें क्या करना है 50% की जो 10% डिबेंचर थे उसको अब चेंज करके हमें कितने देने 50% के. तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इक्वेशन बनाना होगा अनु लिमिटेड के लिए और बिनु लिमिटेड के लिए. 50% हम इसको इंटरेस्ट देने वाले यानी कि 50 रुपीज हम इसको पर डिबेंचर उसको क्या देंगे इंटरेस्ट पे करेंगे. तो जब 50 रुपी इंटरेस्ट हो तो डिबेंचर वैल्यू होगी 100 रुपीज. तो जब अनु लिमिटेड में 4,800 इंटरेस्ट हो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 32,000. उसी तरह बीनू की भी तो 22,400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15 यानी कि 16,000 यानी कि 30,000 प्लस 16 टोटल 48,000.
हम डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो 24,000 प्रॉफिट होगा। क्यों कि पहले हमें हमारा जो लायबिलिटीज था डिबेंचर्स का वो 72,000 था, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया 48,000, मीन्स हमें बेनिफिट हुआ 24,000। इंटरेस्ट तो हमें सेम टू सेम देना है, कोई चेंज करना नहीं है, जो पहले देते वही दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो लायबिलिटीज था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसके कारण क्या होगा, हमें इतना प्रॉफिट यूज करने को मिलेगा, इसलिए हम इसको डिबेंचर प्रॉफिट कहते हैं। अब हमारी नेसेसरी कैलकुलेशन हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बैलेंस शीट आफ्टर अमलगेशन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अनु प्लस बीनू 5,60,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अनु प्लस बीनू 4 lakhs, इक्विटी शेयर प्रीमियम अनु प्लस बीनू 11,20,000, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम तो अनु प्लस बीनू 1,60,000। उसके बाद रिवोल्यूशन रिजर्व तो 120 प्लस 18 यानी कि 2 lakhs। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दोनों का जनरल रिजर्व यहाँ पे लिख देते 1,36,000 प्लस 1,20,000, तो 136 प्लस 126 तो 2,56,000 माइनस। अब हमारा डिफरेंस यहाँ पे देख लो 4,60,000 प्लस 1,84,000 यानी 6 lakhs, तो यहाँ पे 6 lakhs, तो हम कहाँ पे चले गए माइनस में, 3,44,000 अभी हम लॉस में है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमारे प्लस हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तो दोनों का मर्ज कितना हुआ 40 प्लस 24 यानी कि 64,000, तो हमने इसमें रिड्यूस किया, तब भी हमारा कितना बाकी रहा 2,80,000 वहां पे बाकी रहा, अभी भी हम लॉस में है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास डिबेंचर प्रॉफिट था, वो हमने इसको पे किया, भाई इसको भी तुम पे कर दो, तो हमने पे किया 24,000, फिर भी हमारा लॉस कितना रहा 2,56,000, तो लॉस हमारा रहा 2,56,000। जब आपका रिजर्व जो है वो माइनस में हो तो इसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको अंदर ही रखना है, आप इसको कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लॉस में हो, इसीलिए लॉस में यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था 40 प्लस 40 80,000, हमारा डिबेंचर्स न्यू हो गया 48,000, और क्रेडिटर्स हमारे दोनों का 4,88,000, टोटल हो गया 30,56,000। और यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज दोनों का मर्ज करके, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, इतना डिफरेंट आएगा 2,56,000, कौन सा डिफरेंट आएगा, ये डिफरेंट आएगा। इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लॉस है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। और 2,56,000 यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 30,56,000, क्योंकि यहाँ पे देखो 16 प्लस 12 यानी कि 28 lakhs, तो भी 2,56,000 का लॉस आ रहा है, तो ये लॉस है जो यहाँ पे हमने इसकी एंट्री दे दी, यानी कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, ओके क्रेडिट बैलेंस है ये, तो लॉस है हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा टोटल हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे हमारे नेचर ऑफ मर्जर। तो मर्जर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, परचेज प्राइस, तो हमने वो जो फाइंड आउट कर ली थी पहले स्टेप में नेचर ऑफ परचेज में, तो जो परचेज प्राइस अनु की है वो 12,96,000 और बेनू की 9,44,000। अब उसमें से हमें क्या करना है, उसके बाद स्टेप 2 है हमारा नेट एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है। नेट एसेट्स हम फाइंड आउट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। तो नेट एसेट्स, यहाँ पे नेट एसेट्स में कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, यानी कि हम टोटल एसेट्स ले लेते हैं 60 lakhs एंड 12 lakhs, उसमें से लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज यहाँ पे क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स है, ओके। तो डिबेंचर्स हमारे जो अनु के थे वो 32,000 थे और बिनु के 16,000 थे, क्रेडिटर्स 3,36,000 थे अनु के और बिनु के 1,56,000, यानी कि 3,68,000 और 1,68,000, तो टोटल हमारा हो गया 12,32,000 और यहाँ पे टोटल हो गया 10,32,000 यानी कि नेट एसेट्स, ओके। अब उसके बाद हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम चलते हैं कि यहाँ पे एक में क्या होगा, गुडविल आएगी और दूसरे में आएगा रिजर्व, ओके। तो किसमें गुडविल आएगी और किसमें रिजर्व आएगी, तो हम चलते देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 12,96,000 अनु की और उसकी परचेज प्राइस है 12 लाख, तो अनु का क्या आएगा, गुडविल आएगा, ओके। अनु का क्या आएगा, गुडविल कितना आएगा 64,000, और बीनू का क्या है, नेट एसेट्स कितनी है 12,32,000 और उसका परचेज प्राइस कितना है 9,44,000, यानी कि बीनू का आएगा रिजर्व, तो 10,32,000 माइनस 9 यानी कि 88,000। अब
इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो रिजर्व। तो रिजर्व्स में गुडविल क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 24,000 रुपीज। ओके, तो आपको ये कैलकुलेशन भी आपको याद रखनी है। अब उसके बाद बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है वो थोड़ा सा वो हो गया है, टेढ़ा हो गया है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो 9,60,000, प्रेफरेंस शेयर तो 4 लाख, इक्विटी शेयर प्रीमियम 11,20,000, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम 1,60,000, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है दोनों का 80,000, डिबेंचर 48,000, क्रेडिटर्स 4,88,000 और जनरल रिजर्व 24,000। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व जो है वो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब भी हम न्यू कंपनी स्टार्ट करते हैं तो दोनों के रिजर्व्स जो है वो कंपनी वो ट्रांसफर नहीं करती। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व होगा 24,000। उसके बाद फिक्स एसेट्स जो थे वो एज इट इज, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपको 80,000, वो कहाँ पे ले जाना है आपको, अमलगेशंस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर्स जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। और आपको घर पे बैठ के इसके पीछे के जो भी एग्जाम्पल्स है 22 है 24 जो भी है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सलामत रहिए। जय हिंद।